Okay, what is up? We just got done. Hello Zainab, you are also here. This is one mad day. वाह, मैंने उसको तोड़ दिया. अच्छा, so I'm sorry. I hope you guys have been well. एक second बस ठहर जाए. We're just setting this up. I am watching this only for Asad. I'm more than sure everybody who joins me is mostly for the other person, never for me. I'm so sad about that. But that's the whole point. Asad is going to be joining me in just a bit. And हम लोग उससे जो बात कर रहे हैं पिया महर, वो बात है न्यूनेस के ऊपर. एक मैंने उस दिन आई थिंक आई सॉ इट एज अ थिंग ऑन सजेशन ऑन क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स पे. आई हैवंट सीन द शो, आई डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट, बट यू नो दिस टाइम दिस गाय हैज़ अ नैक फॉर एक्टिंग. एंड उसके अंदर एक चीज़ डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग एक बड़ी नई ज़िंदगी में. अच्छा, मैं आपको असद का नंबर, असद के घर का एड्रेस सब कुछ देता हूँ, बस 5 मिनट इंतज़ार करें. I love cooking, man. I love cooking. So what we're going towards is a very new way of life. I don't know what's going to happen, how it's going to happen, but I do know it is going to happen. Something new is right around the corner. In fact, it's staring at us right in our face, but we don't know what to do with it. We can't see it because we've just been so closed to the idea of newness कि हमें लगता है कि सिर्फ when we go back to the normal, वो जो है ना वो situation. No, my phone's still not repaired, honestly speaking. It's मतलब it's still broken, but it's still a little bit of वो चल रहा है आधा पे जाता. I haven't had the time. I've just been. It's really weird how everybody I've met in the last few days have said that during lockdown they have been overworked. And I think ये वाली चीज़ बहुत true है. यासिर हुसैन मेरे दोस्त, आपके फ़ोन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. अच्छा, so situation ये कि what we haven't realized is कि हम लोग बड़े भी पुरानी हरकतों पे चल रहे हैं. मेरे पास आपका माइक है, ले लें यार, पूरी दुनिया को पता. नाजरीन, ये अरीश हैं, जस्ट इन केस यू डोंट नो. आजा हेलो. हाँ, सब ऊंचा बोलना. प्रॉन्स किधर है? प्रॉन्स ही मैंने तंगीर को कहा ऊपर लेके जाए आपको दे. वो ऊपर गया था आपको ढूंढने. ओके अच्छा, ओके, बाय बाय. हेलो सुमी, व्हाट इज अप मैन? Hello Seher, how are you? So, newness is right around the corner. In order for us to adapt, you have to learn to be new. So I want, by the end of today, मुस्तफ़ा शाह क्या हाल चाल है? आपने मुझे मैसेज किया था, मैं भूल गया आपको जवाब देना. I'm sorry. इससे पहले कि आप यहाँ पे बोले, मैं कॉल कर लिया कर यार, मुझे वॉइस नोट्स बहुत अजीब लगते हैं. But here, are you guys one of those people social distancing? यार मेरी social distancing बचपन से चल रही है. I have been not very socially distant from the people that I care about, and बाकी सबसे physical distancing हाँ चल रही होती है, because I think physical distancing अच्छी बात है. But there are people who are close to me. I've never been far from them, hopefully, and that's just the way I work. Newness. Zaina Haider, what is up? How are you? What is happening, bro? Okay, so it's very important that we learn to be new. So by the end of today's session, what I want you to achieve is for you to be open to something new. Anything. It may be anything. It may be your profession. It may be a new hobby. It may be a new Amna Raja, why didn't I go live yesterday? I was praying. I had planned for some, wo wali namazein, and just had to take some time out for just one of those days. We got a train very soon, man. I'm thinking right after Eid I could be in training condition, and we're going to start training because I think I need something new from my training as well. So that's the whole point. So by the end of today's session, I hope you guys are open to the idea of new. And उस new में कुछ भी हो सकता है, whether it's a new hobby, whether it's a new profession, whether it's a new thing you want to learn, whether it is a new hairstyle, whether it is your facial beard, whether it is any of those things. Do anything new, just one new thing today, just the thought of it, and if you can share it
with me, I'd be really happy. And that's what I want you to write in either the comments, whatever it is that you are thinking. Okay, what is the new thing that you would like to try out, whether it is cooking, whether it is this. आप प्लीज़ असद को कहा कि वो मुझे फॉलो करें। अरे क्या बात है, असद आपको अभी फॉलो करेंगे, असद फॉलो करें। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है जब औरतें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको कहती हैं फॉलो करें, जब वो आपको सामने फॉलो करते हैं तो आप कहते हैं कितने अच्छे छोरे हैं। बहुत बुरी बात है, बड़ी सिलेक्टिव बात हो जाती है। बट खैर, आई एम नॉट अ सोशल कमेंटेटर, ऑल्दो आई डू रियली फील लाइक समटाइम्स कि अगर हम किसी भी बात पे कोई भी बात बोल देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अभी यासिर साहब ने एक बात बोली अर्तगुल के ऊपर, मैंने उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, लोगों ने मत मार दी हमारी। मतलब कि आप होते कौन है इसके बारे में बोलने वाले? एक आपका स्टैंडर्ड कंटेंट, ये वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे, लोग शेयर करते हैं, ये वो बड़ी बात कर दी। असद सिद्दीकी साहब आ गए हैं क्योंकि उनकी घड़ी में अब 11 बज चुके हैं। अब हम उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। आजा भाईजान, एजू इनवाइट किधर गया? So love to talk about Yasir. I will ask him about Yasir. I think it's very important for him to talk about Yasir because he's his old/new friend. अर्तुगरुल को कुछ ना बोले क्योंकि आप लोग हमारा अच्छा कंटेंट शेयर नहीं करते, आप लोग सिर्फ बुरी बातें शेयर करते हैं। सो इसमें कसूर मेरा ही है, बिल्कुल, हमेशा मेरा भी कसूर है, अली का भी कसूर है। अरे रॉकस्टार कालिया सर, क्या अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.com/pk https। क्या सीन है, क्या हो रहा है? बस कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था। 11 बज गए और फिर मुझे जैनब ने बताया जी 11 बज चुके हैं, मुनीब आ गए। मैंने कहा 2 मिनट में आया। मैं एक्चुअली एक और चीज भी शूट कर रहा था, वो 11:01 मैंने उसी के दरमियान में मैंने कहा मैं असद को लेट ना कराऊं, तो बट अच्छा हुआ सरफराज ने आज ही, आप ऐसे ना आइएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं जरा बाहर हूँ। बट खैर, मैं साथ साथ पर्सनल मैसेजेस भी साथ साथ चल रहे होते हैं, मेरे जो 2-4 दोस्त होते हैं वो भी बात कर लेते हैं इसी तरह। क्या हो रहा है जिंदगी में? चाहिए बस जी, रमजान भी आए, वो भी अब खत्म होने को आ गए हैं। अब ईद है, अब बस चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। एक जैसा ही सबका हाल है। हाँ अच्छा, मैंने जो बात करनी है तुमसे वो एक बड़ा हाँ मैं हमेशा एक टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। सो द टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज न्यूनेस। हाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे लग ये रहा है कि हम लोग ने ना न्यूनेस का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। एंड यू एज एन एक्टर हैव इवॉल्व्ड सो मेनी टाइम्स, एंड एज एन एक्टर एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले इज न्यू। तो मुझे आप लोगों से ये समझना है कि वो जो न्यू एक चीज होती है वो आप अपने ऊपर हावी कैसे करते हो? हाउ डू यू लेट इट become a part of you? How do you open yourself up to sometimes playing a positive character, sometimes playing a negative character, sometimes playing a single person, sometimes playing a father or a husband, anything like that? वो न्यूनेस का कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, आपके लिए क्या है? इतनी भारी बात, इतनी भारी वो बात कि कि आता है इसमें। और जहां तक न्यू की बात है, तो न्यू क्या होता है? हमारे यहाँ कितने एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। हो रही है तो वो जो तुम्हारे घर का इंटरनेट है वो खराब है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जायरा से भी बात कर रहा था तो तुम्हारी वो इशू आ रहा था, तो वहां चले जाओ जहाँ पे इंटरनेट सही आता है, इंशाल्लाह अज़ीम। आवाज आ रही है? तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, अगर इफ यू कैन गो टू दैट प्लेस जहाँ पे बेहतर इंटरनेट कनेक्शन आता है, बिकॉज जारा के साथ भी यही इशू आ रहा था आई थिंक।
अभी अभी शायद सही आएगा, अभी मैंने वो दूसरा वाला हाँ कनेक्ट किया है तो अब मेरे ख्याल में सही आएगा, अभी तो लैग नहीं कर रहा। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही है, तीन हो ठीक गया। है, डन। अच्छा, सो न्यूनेस के बारे में हम बात कर रहे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाफ ऑफ व्हाट यू सेड, सो रिपीट कर दे। मैं यही कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है करने को ज्यादा, स्पेशली लड़कों के कैरेक्टर्स में इतना कुछ खास होता नहीं है कि हम इतने न्यूनेस और कुछ बहुत ज्यादा सोचें जी हमने ये करना है ये करना है। मैक्सिमम आपका होता है या तो एक पॉजिटिव आदमी होता है, उसने मोनोटनस सही चलना है, जितने भी आप पॉजिटिव का तो आपको ऑलमोस्ट एक जैसा लगेगा कि हाँ यार ये एक शरीफ आदमी है, इसने बदतमीजी नहीं करनी, इसने यस 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 करना है और इसने अच्छा बन के आखिर में ये जीत जाएगा। ऑन द अदर हैंड विलन जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा होता है, मुझे वो ज्यादा इसलिए मजा आता है क्योंकि उसके पास करने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, उसमें आपके लिए कुछ वो नहीं होता कि आप ये नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर सो नेगेटिव यू कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट, एंड देन यू हैव द परफॉर्मेंस मार्जिन। तो मुझे इतना न्यूनेस नजर नहीं आता कि मुझे एक्चुअली उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करनी पड़े। हाँ ऑब्वियसली अगर अल्लाह करे कि हमारे यहाँ कुछ इस किस्म के टॉपिक्स आए जिसमें आप बिल्कुल 360 चेंज आपका आए कि आपने बिल्कुल जी आपने पहाड़ियों पे चढ़ के और लड़ाई करनी है और घोड़े चलाने हैं, तब समझ में आती है कि जी हाँ जी आपने कुछ नया काम किया, अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग न्यू। नाइस। इट्स इट सो मेरा पॉइंट ये है कि अब हम लोग जिंदगी के ना ऐसे मरहले पे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन एंड द पोस्ट कोविड सिचुएशन। आई थिंक एवरीबडी विल हैव टू डू समथिंग न्यू, they'll have to learn to a new lifestyle, they'll have to understand what new means. So उसके लिए शुरू के लिए they'll have to learn a new trick, a new trade, a new hobby. How have you been keeping yourself busy during the lockdown? I've been playing guitar. I've been playing video games. Well, recently I've started reading books now. मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़ा शऊर बेदार करना चाहिए। बहुत हो गई ये सब फजूल की। लेकिन मुनीब इतना मजा आता है बुक्स पढ़ने में, जो मुझे अब समझ में आ रही है कि मैंने कभी नहीं इतना कभी फोकस किया कि यार बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम है आपके पास। तो अब आप बुक्स पढ़ रहे, मैंने अभी यहाँ पे कोई 15 बुक्स मंगवाई हैं और हर किस्म की मंगवाई हैं बुक्स मैंने। मुझे हिस्ट्री से वैसे ही मेरा एक बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है, मुझे बड़ा मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री मूवीज देखने में। तो मैंने अभी सलादीन की बुक पढ़ रहा हूँ मैं आजकल, Nice. सलाउद्दीन अयूबी की। तो क्या मतलब बहुत मजा आ रहा है उसको पढ़ के। तो मैं तो इन सब अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा हुआ इन सारी चीजों में। और जहां तक न्यूनेस की बात है ना, मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान को बजाय ऐसे कि वो अपनी कोई हॉबी देखे, पहले तो भाई अपने अंदर न्यूनेस लेकर आए यहाँ से, ये बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ से न्यूनेस नहीं आएगी, कोई भी हॉबी वो एंड में वैसी हो जाएगी जैसा कि होती है। तो सबसे पहले तो हर आदमी को भाई यहाँ से शांत होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर मामलात में, एक दूसरे के ओपिनियंस को समझना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने ज्यादा उखड़े हुए क्यों हैं और हर बात पे बंदूक लेके क्यों खड़े हो जाते हैं, और अपना अपना ओपिनियन थोपने के ऊपर क्यों आ जाते हैं कि नहीं जी मैंने कहा है तो यही होगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं होता। आई थिंक ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और नई बात यह है कि ये सबसे पुरानी बात है जो हम लोगों को सीख जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग पिछले 14,000 सालों से ये नहीं सीख सके कि इंसान को ये चीज नहीं करनी। और हम बिल्कुल। सब दुनिया के तमाम लीडर्स ये कहते गए हैं, मरते गए हैं कि भाई ये ना करो, और हम वही करते जा रहे हैं। आज 25,000 साल हो गए इंसानी हिस्ट्री को, थोड़ी बहुत जो हमें हमें पता है उसके अंदर हम यही करते जा रहे हैं कि हम लोग अपने आप को रोल देते हैं किसी और के कहने पे। उस टॉपिक पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पिछले दिनों आई, जो कि यासिर हुसैन ने एक बात बोली, एंड मैंने उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी किया। कुछ लोगों ने नहीं भी किया, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उसकी बात को लेके, एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर कमेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो अभी आप कह रहे थे कि हमने उसके ओपिनियन को एक साइड पे रखते हुए तमाम अपनी दुनिया के ओपिनियंस उसके ऊपर डाल दिए। हाँ और सबने डाले हैं। मतलब ठीक है, अर्तुगरुल आए ना आए हमारी तरफ से वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से वो किया है ना कि ये एक बुरा इंसान है तो इसकी बुरी सोच है,
तो वो जो भी कहेगा वो बुरा है, वर्सेस हम सारों की ओपिनियन बिल्कुल सही है क्योंकि हम सारे अच्छे इंसान हैं. What is your take on international dramas coming to Pakistan? मुनीब, पहले तो मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि ड्रामे के ऊपर एक ड्रामे के ऊपर जो 2014 में बना था, आपके पास 2020 में ऑन एयर हो गया है. नहीं, बल्कि एक पहले भी हुआ था, हम सितारे पे भी आया था, लेकिन उस वक्त तक इतना ज्यादा कुछ था नहीं. वो आ चुका है हम सितारे पे. तो अब वो दोबारा जब आया है तो लोगों ने उस चीज को लेके आपस में इतनी कड़वाहट क्यों उगल रहे हैं. पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आती, क्या ये इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स करें, इसमें आप लड़ाई झगड़ा करें, आप इसमें एक दूसरे को गालम गलोच करें. पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आती. ये कोई बात नहीं है. जिस जो जो एरा अभी जो जो वक्त गुजर रहा है यहाँ पे हर आदमी के ऊपर, उसके रहते हुए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. इंसान को इग्नोर करना तो बहुत जरूरी है यार. अभी कितनी और चीजें हो रही हैं, आप अभी भी नहीं सीखना चाह रहे हो कि भाई ये हालात कैसे है यार. अभी जाने दो यार. उसने अर्तुरुल के बारे में बोल दिया, जाने दो यार. उसकी मर्जी, वो देखे ना देखे, उसको बुरा लगता है यार, उसका मसला है ये. जहां तक मेरी बात है, मुझे तो ये बहुत पसंद है. मुझे तो बहुत पसंद है. बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि खुदा की कसम मेरे पास इतना आ जाए कि मैं इस किस्म का बना दूं. और इस किस्म के शोज बिल्कुल बनने चाहिए यार. इस किस्म के शोज बिल्कुल बनने चाहिए. इससे क्या हो रहा है, एक तो चीज अच्छी है, एक चीज बहुत अच्छी है. दूसरी, आपकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं. उसमें टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं कि इंसान वही देख ले तो बहुत सारी चीजें सीख सकता है. मैंने उसका एक चीज अगर आप उसमें नोट किया, आपने देखा है नहीं देखा है? नहीं. मैंने वो पूरा सीजन पिछले साल देख के खत्म कर लिया था. मैं सीक्वल देख रहा हूँ, उस्मान के नाम से आया है. मैं तो वो भी देख रहा हूँ, रेगुलर देखता हूँ. मैं तो उसका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ. 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी का, कि वो 10 मिनट का सीन होता है या 5 मिनट का होता है या 15 मिनट का सीन होता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल सीन होता है. इस किस्म में जिस तरह वो उनकी स्टोरी लाइन बढ़ रही होती है, उसमें वो बड़े जबरदस्त जबरदस्त आपको चीजें बताते हैं. बहुत जबरदस्त अकवाले जर्री भी होते हैं उसके अंदर. बहुत कमाल की चीज है. तो मैं तो चाहता हूँ कि यार इस किस्म की हमारे यहाँ बिल्कुल बननी चाहिए. और अगर एक टर्किश कंटेंट है, अगर वो हमारे चैनल पे चल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है. मेरी नजर में ये कोई बुराई नहीं है. आप एंटरटेन भी हो रहे हैं, आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है. और एक चीज अच्छी है तो अगर उसको मैं उस चीज को सराह रहा हूं तो उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है. तो बहुत अच्छी चीज है मेरे नजरिए. तो बहुत अच्छा है, ये तो होना चाहिए. इस किस्म की चीजें बिल्कुल आनी चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी. व्हाई डू यू थिंक, बिकॉज एक्टर्स के ऊपर बहुत सारा जोर आ रहा है आजकल के अच्छा कंटेंट बनाए. मुझे ये नहीं लगता कि इतना इतना कंटेंट के अंदर एक्टर्स का कितना हाथ होता है. और अगर नहीं होता तो हम लोग क्यों नहीं बना सक रहे? व्हाट इज रॉन्ग विद आवर इंस्टीट्यूशंस या आवर डायरेक्टर्स कि हम लोग इतनी बड़ी प्रोडक्शन, चलो ना भी हो, सीखने वाली बात तो हम छोटी मोटी कर सकते हैं ना. बिल्कुल हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे कंटेंट नहीं बन रहे. हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे कंटेंट बन रहे हैं और हम उस चीज का हिस्सा हैं. और मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि जी मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जी फलाने ने मुझे ऐसा काम दे दिया तो मुझे तो करना है, या तो अगर मुझे बुरा लगता है तो भाई मैं ना करूं. ऐसा नहीं है. काम अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ. सिर्फ एक जो मुझे ऐसा लगता, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. आशिर ने एक हम बात बोली, हमारे डायरेक्टर नहीं अच्छे. उसको तो अभी अब्बा बताएंगे उसके. तो घर से उसकी शुरू होगी उसकी तो पहले. हाँ, उसका तो अगला प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया. हाँ, आशिर तो गया. अगला प्रोजेक्ट कैंसिल. नाइल आएगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे बनते हैं. हमारे यहाँ मसले है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. हम एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करना चाहते कि एक तो सर माने कि हमारा मुल्क इतना पैसे में कमजोर है, हमें गवर्नमेंट से कोई इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक कोई चीज बनाए. जैसे अभी सऊदी अरब और इजिप्ट ने मिलकर उनकी एक नई टीवी सीरीज आ रही है किंगडम ऑफ फायर के नाम से, नवंबर में. अच्छा. जो आप कह लें कि वो अर्तुरुल का जवाब देना चाहते हैं.
उसमें वो अगेंस्ट जा रहे हैं उसके। तो बहुत 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 ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन है, और उसमें आपको नजर आएगा कि हाँ उसमें बहुत पैसा खर्च है। तो पहली बात तो हमारा गवर्नमेंट नहीं देती हमें इतना साथ कि जी हम ये लो, तुम्हें हमने इतनी सब्सिडी दी है कि जाओ अब तुम बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो जो होता है वो हमारी जेब से, प्रोड्यूसर्स वगैरह की जेब से ही हो रहा होता है। लेकिन वो कितनी हद तक करेंगे, वो कितनी हद तक लगा सकते हैं, वो इतना नहीं लगा सकते। तो वो देखते हैं कि यार हमारी अभी इतनी शकत नहीं हुई कि हम जी लगा दे करोड़ों रुपए की। लगाते बिल्कुल, जरूर है हम करोड़ों, लेकिन एक एपिसोड पे करोड़ नहीं लगा सकते यार। ठीक है, ऑब्वियसली। तो हमारा तो ड्रामा ही 4-5 करोड़ का एक अच्छा ड्रामा बनता है यार। उसके बाद फिर आपके एडवर्टाइजर से जब चैनल कमाएगा तो फिर वो प्रोड्यूसर को देगा, प्रोड्यूसर थोड़ा बहुत कमाएगा, फिर वो एक्टर्स को देगा। तो इस तरीके की चेन है पूरी है। तो ये चीज हमें समझनी है। हम एक्सपेरिमेंट, मैं तो कहता हूँ कि यार चलो इतने ही पैसों में इतना सा तो बनाओ, कोशिश तो करें हम। पहले भी तो बनते थे ना, टीपू सुल्तान बनाए, मोहम्मद बिन कासिम बनाए, ये चीजें हमारे यहाँ बनी है। ऐसा नहीं है कि इस किस्म की हिस्टोरिकल चीजें हमारे पास बनी नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम और ज्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज अच्छी आ गई हैं, कैमरा अच्छे आ गए हैं, लोग अच्छे आ गए हैं। और क्योंकि समझ रहे हैं वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं यार, दिमाग थोड़ा सा चलता है। हम लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, हम अभी भी वही सेम कंटेंट में जा रहे हैं कि अच्छा जी उसकी तलाक हो गई, अच्छा उसको मोहब्बत थी, अच्छा वो अगवा हो गई, अच्छा जी उसकी सास आ गई। अब एज एन एक्टर मजबूरी है भाई, हमें करना है ये काम। लेकिन फिर हमें उसको 100% दे के भी करना है। हमें उसको करना है, या तो फिर हम ना करें। हम बोलना आसान है कि जी कंटेंट बकवास है, लेकिन सर ये भी अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी, मैं इस तरह नहीं कहूंगा कि कंटेंट बकवास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट जरूर होना चाहिए। हर चीज का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जैसे एनिमेशन मूवीज अभी बनी है, पहले नहीं बनती थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एनिमेटेड मूवीज बनाना शुरू की, सिनेमा में लगी, लोग उसको देखने आए, उसकी बहुत वाह वाह हुई। तो इस तरीके से हमें अब इस पे भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। एंड कोई आई बुराई फील नहीं कि, है। हाँ, एंड आई फील कि हम लोगों के कंटेंट के लिए, देखो, अकल के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। अकल के लिए एब्सोल्युटली। सिर्फ अकल चाहिए होती है। अगर हम लोग सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लें कि लेट्स अज्यूम जो प्रोड्यूसर है वो दुनिया का सबसे ज्यादा अकलमंद आदमी नहीं है। अगर वो सबसे ज्यादा अकलमंद आदमी है तो वो किसी अकलमंद आदमी को हायर कर ले ताकि वो उसको अकलमंद एक वो दे दे, एडवाइस, कंटेंट लिख दे। बिल्कुल। हम लोगों को मसला ये होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है उसको सब कुछ, कंटेंट भी बनाना आता है, डायरेक्टर भी होता है, सेलर भी होता है, एक्टर भी होता है मोस्टली। तो अब हम लोगों को न्यू कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यू गाइज, लाइक यू नो, आई नो यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन इन योर हार्ट. Zara is very creative, Yasir is very creative, and you have a very strong sort of connection, and वो जैसे फ्रेंड्स वाली चीज है आप लोगों के अंदर एक है, उसको भी सोचा है कि यार हम लोग इस, यासिर इज ऑल्सो रियली गुड राइटर और हैज द हम्म। पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ रियली गुड राइटर। कभी कुछ सोचा है कि हम लोग खुद कंटेंट बनाएंगे? मैंने बिल्कुल सोचा है। मैंने एक्चुअली, मेरा हमेशा से मेरा एक है, ये मेरा ख्वाब कह लें या जो भी कह लें, मुझे बनानी है, और मुझे इसी किस्म की हिस्टोरिक चीजों में ही से कुछ निकाल के बनाना है, ये मेरा है। मुझे नहीं पता कब आएगा, वो वक्त आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन ये मेरी सोच में है कि अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाके, ऑब्वियसली हमने इसी में ही रहना है क्योंकि हमने काम ही यही किया है। तो अगर मैंने कुछ प्रोड्यूस किया तो आई एम गोइंग टू गो फॉर सम लिटिल एक्सपेरिमेंट, आई विल गो फॉर सम हिस्टोरिक सब्जेक्ट, आई वर्क ऑन इट, और फिर अल्लाह ने किया तो फिर वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो फिर बात की बात है। लेकिन है ये मेरा। अच्छा, हु डू यू रेकमेंड? आजकल के जो ड्रामे चल रहे हैं, मे बी नॉट द वंस जिसके अंदर आप हैं, उसके अंदर से सबसे अच्छा राइटिंग पोटेंशियल किस इंसान में है? आप कह रहे हैं कि कौन सा राइटर अभी फिलहाल हाँ, अच्छे हैं? हाँ, खलील यार साहब की बात नहीं कर लेकिन वो अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा। एज अ राइटर ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड एज अ राइटर। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका जाती है भाई, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, वो उनका जाती मसला है। राइटर हमारे पास वो ऐसा राइटर आते हैं कि यार क्या लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, सारी दुनिया पता है, सबको पता है कि वो अच्छा लिखा है। बिल्कुल। इसी तरीके से अच्छे हैं, उनको वो इतने अच्छे हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान में आज तक कोई राइटर इतना मशहूर नहीं हुआ जितना खलील रहमान हुआ है, तो उनको समझ है
आवाज आ रही है? बता दें। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मानुकुइन, आपको मेरी आवाज आ रही है? गरीब मिर्जा, अगर आपको, यार आप कितने हैंडसम हन। ये आई थिंक असद के लिए ही होगा। आवाज आ रही है मुझे। हाँ, किसकी कॉल आ गई? हाँ, दिलरुबा नसीम। ओके, so till he comes back, just I hope you guys understand. हाँ, आ गई आवाज? अमेंट 63, हेलो। हाँ हाँ, अल्लाह तौबा, you are just आवाज आ रही है अभी भाई? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, करीब आ गया हूँ। उठना ही पड़ेगा, उठना। असद को हाँ, जिंदगी में एक जगह पे हिलाना जो है ना, एक नेक्स्ट लेवल का काम होता है। असद को सवाए ये जो है वैनिटी से सेट पे जाने के अलावा किसी जगह पे हिलाना दुनिया का मुश्किल तरीन, ये क्या कहते हैं, नामुमकिन। बस मैं यहीं पे बैठ गया हूँ, सारा कुछ खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, यहीं पे सो जाऊंगा, यहीं से उठ के सेट पे चला जाऊंगा बस। अच्छा, तो अब मुझे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन एक्टिंग, व्हाट डू यू थिंक कि अब आगे क्या होगा? क्या हम वही पुराने प्रोडक्शन के सिस्टम्स पे चले जाएंगे, या हम कुछ अगला सोच रहे हैं, कुछ अगला कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, हम अगला अगला करेंगे, अगला स्टेप आएगा। और पुराने पे तो हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे, प्रोग्रेस हो रही है। बस ये जो हालात, थोड़े से मुश्किल वक्त आया हुआ है, इसमें बस थोड़ा सा, या भाई सर्वाइवल वाली बात है कि आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लें, इंशाल्लाह चीजें बेहतर ही की तरफ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका कंटेंट भी अच्छा जाएगा, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी जाएगी, एक्टर्स को उनकी प्रोटोकॉल भी उतनी मिलेगी, प्रोड्यूस, ये हर एक बंदा यहाँ पे, ये पूरी टीम का काम होता है। कोई एक बंदा ऊपर जाए और दूसरा बंदा नीचे आए, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये सब लोग एक साथ ऊपर जाएंगे और ये प्रोग्रेस की तरफ है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा यार। अच्छा, मुझे ये बताओ, जस्ट आई डोंट नो वेदर यू नो द आंसर ऑफ दिस वन, बट गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व हुई अभी तक प्रोडक्शंस में और टीवी में इस डायरेक्टली? के सब्सिडी नहीं तो एटलीस्ट एक फंडिंग तो मिलनी चाहिए। आई नो दे डू बिट्स एंड पीसेस, आर्मी वाले कभी करते हैं, आईएसपीआर करता है प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट भी करती है सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को, बट हमारे और टैक्स आप लोगों के सारे एट सोर्स कटते हैं, हम सबके बिल्कुल टैक्सेस फिल्में बनाते हैं एट सोर्स कटते हैं। तो व्हाई बिल्कुल। हैजंट taken interest in developing content for everybody? कोई आइडिया? नहीं, मेरी, मुझे इतना कोई ऐसा सच कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी अभी थोड़े दिन पहले एक ऑफिशियल से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो अल्लाह करे, अब उन्होंने कहा है तो वो हो जाए, वो हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है, वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। बिल्कुल, आई थिंक अगर वो जितना ज्यादा रेगुलरली करेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाउ इज मैरिड लाइफ बीइंग इन लॉकडाउन? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ी जबरदस्त, ज़ारा इतिकाफ में है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। ज़ारा अच्छा, इतिकाफ में है, वाह। और मैं अब अपना एक कमरा है, वहां पे मेरा वीडियो गेम है, वहां पे मेरी गिटार है, वहां पे मेरा किताबें हैं, और मैं हूँ। ज़ारा इत्तेकाफ में मैं उसके बाद कोई बाहर मैं जाता हूँ उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए वो बिल्कुल अलग। आजकल तो मैंने छोड़ दिया, काफी दिनों से, जब से वो एहतिकाफ में गई है, मैं गिटार विटार नहीं बजा रहा। तो अब बस वो किताबें, और या तो म्यूजिक है, या तो अम्मा अब्बा के साथ मैं नीचे बैठ जाता हूँ बस। लेकिन वो नाइस। एहतिकाफ में अच्छा, इतनी, बताओ बताओ। नहीं मैं कहता हूँ वो एहतिकाफ में इतना खामोशी, इतना सन्नाटा है, क्योंकि सिर्फ ज़ारा ही की एक आवाज होती है, तो लगता है कि हाँ आपको कोई है, यहाँ पे काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ज़ारा एहतिकाफ में तो एकदम खामोशी, सब अपने अपने, अब्बा अपने कमरे में, अम्मा उसको पीछे उधर, मैं इधर। पर्ची पर्ची नहीं होती है, इत्तेकाफ वालों को पर्ची जाती है कि सर दुआ कर लीजिएगा, वो वाली। अच्छा, अच्छा। सो अब मुझे ये बताओ कि अब आगे जिंदगी में कोई और प्लान है एक्टिंग के अलावा, बिसाइड्स टेलीविजन, बिसाइड्स मतलब द बेसिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? कभी कुछ सोचा था? कुछ मुझे हाँ हमेशा लगता है, मैं मुझे लगता है कि
यू आर मोर देन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आपके अंदर ना कुछ मसले हैं जिंदगी के, कोई दिल की काफी चीज बहुत काफी बहुत काफी मसले शदीद। हैं। जब मैं when we met, आई थिंक शुरू में आई वाज लाइक कि यार ये बंदा इस इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि आई नो यू कैन एक्ट। आई हैव शिफ्ट, मैंने याद है मैंने आपको बताया था कि यार मैंने जब वो स्क्रीन पे पहली दफा आप आए थे, मैंने कहा था आई सॉ स्टार बीइंग बॉर्न। तो आई नो यू कैन एक्ट, बट आई आल्सो नो यू हैव अ लॉट मोर टू ऑफर। हैव यू रियलाइज्ड कि यार ये मैंने क्यों कर रहा हूँ, या मैंने क्या आगे क्या अचीव करना है जिंदगी में? आई एम स्टिल थिंकिंग ऑनेस्टली। मैं ये बार बार सोचता हूँ कि मैंने आगे और क्या करना हो। मेरे पास बहुत सारी चीजें आती हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं इतना डिवाइडेड हूँ, इतना ज्यादा डिवाइडेड हूँ कि मुझे नहीं कभी कभार समझ में आता कि अच्छा मुझे रुकना किधर है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे फोकल पॉइंट नहीं मिल रहा कि मुझे रुकना कहाँ है। शाजिया का जवाब आ रुक गया। जाऊं? शाजिया का जवाब आ गया, मुनीर क्यों झूठ बोल रहा हो? इधर आओ। हाँ हाँ, शाजिया मुनीत किसी क्यों और की झूठ तारीफ। बोल रहे हो? हाँ, सिर्फ शाजिया ग्रेट रॉक स्टार बट अभी रुको, मैं आता हूँ। हाँ चलो तुम जाओ, मैं भी डन हो गया हूँ, तुम निकलो, मैं कर लेता हूँ बाकी। शाजिया को जवाब दे दो। नहीं, मैं शादिया को नहीं जवाब दे रहा। शाजिया को जवाब दे के दिखाओ तुम। हाँ यहीं पे नहीं तुम्हारे नहीं नहीं, वो भाई वो आ जाएंगी। वो आ जाएंगी। ना, इसी के अंदर आ जाएगी, इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर वो। वो शाजिया ढूंढ रही होंगी कि कोई ऐसी विंडो है कि तीसरा कैमरा भी खुल जाए और मैं अचानक से इन दोनों के बीच में आ जाऊं। हाँ भाई बट चलो अपना ख्याल रखो, फिर होती है इंशाल्लाह टेबल थैंक टेनिस यू मुनीब। खेलते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच मैन। यस, थैंक यू, थैंक यू। So ये भी हो गया। Okay, so as Ramzan ends, I think it's very important for us to take forward a few thoughts. मेरी I think it's very important for us to understand कि हम लोग ये जो हमें मौका मिला था लॉकडाउन का, रमजान का, यू नो लैलतुल कद्र का, बरकतों वाली रातों का, all of the good things that have happened to us, उससे हमने सीखा क्या? And what are we going to take forward? What have we learned? Is that something new? Is that something old? Have we learned something new? I'm not pressurizing you, asking of you if you guys want to do anything in your life that you have not done yet. The concept of yet is something very, very interesting, which we will talk about in more conversations, I think, in maybe after Eid as well. I think we're going to continue this. The importance of yet is very, very cool. So आपने जिंदगी में कौन सी चीज अभी तक नहीं की हुई that you want to do? I want to know that. If you can, after this, please send me a message. Anything that you have not done yet that you would like to do, I'd like to know more about that, because that will set a precedent for the future you, the better you, the improved you, the new you. जुम्मा मुबारक टू एवरीबडी इन एडवांस। वो क्या कहते हैं इस वाले जुम्मे को, आप सबको पता है, जुम्मतुल विदा। सो एज वी टॉक अबाउट जुम्मतुल विदा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू say Khuda Hafiz and Al-Vida.